अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल कवर टू skills. One is the reusability and second will be of conditional statement in Python. Again, the prerequisites are the same. We will expect you do not have taken any previous programming course. So with that assumption, we will continue the reusability of the reusability in the Python. So we start. Uh, First, we review last skill. Last time we have studied or learned how to write a Python program that take input from the user, apply mathematical operations, and give output on console. This was the code that we have written down. And if you remember, we will start with the input statement that will take input from the user. Then whenever we take input from the user, it actually give in the terms of string. And then we will convert that into the integer. And it will goes into the distance. What is this? This was the a variable that declare we use and that actually used to store information into the memory. And similarly, second line will take input from user again and convert it into the integer, and then it will store information into the memory. Both of these are the actually variables. And then third step, we are dividing distance, whatever user will enter in this variable, and that will be divided by the time variable, and answer will be stored into the third variable speed. Then finally we are showing the speed is actually what print show the content that will is passed within these brackets on the screen. And when we write down speed is in double quotes, it will show these contents as it is on the screen. And when we will do the write on the speed, whatever the value of the speed, because we are writing without double quotes, then whatever the value of the speed, it will shows on the screen. Here you can see here 4. So we write down with then double quotes, then it will show the speed on the screen instead of the value of the speed. So last time we have covered three concepts in Python: how to take the input from the user, and how to store into the variables, and the data type concepts within the Python, and the output, how to show output on the screen. So let's move on. And today we will convert our code into the more reusable manner. So today's skill is write a Python code segment that can be reused in different part of the programs. So our objective is to write a code once and use that uh, into the other part of the program. Let's see how to do it. But before doing that, we will actually visualize the problem. Let's see, someone asks us to write a Python program that will print Kaka on the console. Uh, Kaka is will be shown on this way. So you can imagine you can write this program only with the print statements. तो अगर आपको ये कहा जाए तो आप सिर्फ print statements को ही यूज करके पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं. उसका अगर देखा जाए तो प्रोग्राम का कोई फॉर्मेट ऐसा होगा. You will have to write down many print statements and you have to make the pattern like K, then again A, and then K, then A. So when you will execute this program, you will see a Kaka will be written on the screen as that was required on the previous screen. So अब इसमें एक problem है. You can imagine it. What is the problem? Problem is we are repeating the code. Like here we print K, here we are printing A, then again we are writing the same statement again. And let's say we have to write down the some more complex name or words on the screen. Then we have to we have to copy and paste the code in the program. तो अब उसमें मसला ये हो सकता है, जब ज़्यादा हम ऐसे करते जाएँगे तो अभी तो छोटा-सा प्रोग्राम, वी कैन कॉपी द code and paste on the
विद इन द नोटपैड और विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन ना जब प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा वर्ड्स होंगे, डिफरेंट डिक्शनरी के वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होंगे, तो एट दैट पॉइंट होगा ये कि अगर हमने इसमें कोई चेंज करनी है, लेट्स से आई वांट टू change, maybe I want to make one more line of single hash mark. I want to change the hash mark with the asterisk or some other characters. So in that case, I have to make changes here in this code. Also, I have to make changes here in this code. So मुझे बार बार changes अगर करनी पड़ती हैं तो बहुत सारी जगह पे करनी पड़ती हैं। तो कंप्यूटर साइंस का एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिपीट इटसेल्फ, वी ट्राई टू remove that part of the code and we try to write information or code once within the program. तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस का एक सबसे ज़्यादा, आप जितने भी हम डिग्री कोर्स कराते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाउ टू रिमूव रिडंडेंसी, कि एक चीज़ जो बार-बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बार-बार ना लिखें। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड राइट इट वंस एंड वी शुड रीयूज़ दैट पार्ट ऑफ द कोड। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो लेट्स से अब हम पाइथन में इसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, वी विल ट्राई टू मेक ए राइट ए रीयूजेबल कोड। तो यही प्रोग्राम देखते हैं किस तरह हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वी विल सेपरेट द कोड। हम उस कोड को एक सेपरेट कर लेते हैं जो कोड हमें लगता है कि हम बाद में वी कैन रीयूज़ इट। वी गिव ए नेम टू इट। हम इसको एक नाम दे देते हैं और that name, actually we use that name to reuse the code। तो फिर हम उस कोड को बार बार इस्तेमाल करने के लिए उस नाम को हम यूज करते हैं। लाइक हमें किसी भी कोड को हम कोई नाम दे सकते हैं, देन वी एक्चुअली यूज दैट नेम टू कॉल और रीयूज दैट पार्ट ऑफ द कोड। सो वो किस तरह करते हैं, that can easily done in the Python, like the code that we previously written down. Actually, here is the problem. The code should be here at this place. You start with the definition. This is the stand for definition. Definition is the actually keyword when we want to give name to any part of the code. Then we use the def. Def stand for the definition, and then we will give a name to our code. Here we are giving a name. You can give any name to your code. Here we are saying the this code, this part of the code will be given name print k. So you can give any name. You can say show k, you can say output k, and then use the parentheses and then colon. After colon you have to add one tab। यहाँ पे एक टैब होना चाहिए और ये जो टैब इसके नीचे आएगा वो सब इसी के नीचे आने चाहिए। यहाँ पे ये कोड में जो है वो गलती आ गई है कि ये थोड़ा-सा टैब आगे हो गया, तो इट शुड बी हियर एट दिस प्लेस। तो ये अगर अदरवाइज़ पाइथन विल गिव यू द एरर। अगर हम इसी कोड को पाइथन में चलाएँगे तो इट विल गिव एरर बिकॉज़ Python is very sensitive to indentation. So here, if it is double colon, it means we are giving the name to our code, and then we will add a tab, and then we will write on the print statements. So अब हमने क्या किया, हमने पूरे इस कोड को एक जो है वो नेम दे दिया। Similarly, we give a name to a part of the that the code that is printing a on the screen. We will give same kind of name to it। यहाँ पे भी हम we will start the definition and then print a parenthesis colon, and here the code that is we want to reuse। So अब हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया कि हमने अपने कोड को एक नाम दे दिया, एंड दिस नेम के वाले पार्ट को भी एक नाम दे दिया, ए वाले पार्ट को भी एक नाम दे दिया, एंड नो दीज नेम कैन बी यूज्ड टू रिपीट दी सेट ऑफ कमांड्स। तो अब इन नामों को हम बार बार यूज कर सकते हैं और इनको हम नाम दे सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं या इनको कह सकते हैं ये काम आप बार बार करें। अब दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड इसको टेक्निकली इस चीज को हम कहते हैं फंक्शंस, कि हम फंक्शंस बना रहे हैं।
तो ये हमने दिस फंक्शन इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमने बनाया है, जो हमने एज ए डेवलपर बनाया है। तो इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट इज द दिस पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो सिमिलरली here it is the name of the function and this part is called the body of the function. Again, sorry for this mistake. ये क्योंकि हमारा C++ का कोर्स था, उसका कोड मैंने चेंज किया, तो आई थिंक के कोड में चेंज के दरमियान ये कहीं पे गलती हो गया। दिस पार्ट शुड बी हेयर एट द सेम इंडेंटेशन लेवल ऑफ अदर कंपोनेंट। इसको एक इंडेंट लेवल आगे होना है और बाकी सबको सेम इंडेंटेशन के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो पाइथन विल गिव यू द एरर। अच्छा जी, this separate block of code, when we give a name to a separate block of code, this is called the function that we have already discussed. And now we can use this name to call the these number of lines. So if we want to call these uh, lines, or we want to execute, then we just have to write down the name of the function in our Python program. After declaring these functions, let's say we do not write this line, then I will execute the program after writing these number of these line of code. Then I will the Python will not show anything on the screen. So if I want to show something on the screen, then I have to call the specific or relevant function. Here, to call a function, we will write down the name of the function. Then Python will goes here and it will actually execute these lines, and it will show k on the screen. So here we say we are calling the function, it is called the call of the function. Here we say we are declaring the function, it is the definition of the function, what will actually function will do, and here we are calling that function. So after calling the function, it will show k on the screen, because we only call k, therefore only k will be shown on the screen. But if we want to print a again, after k we want to print a, then we have to call the function print a. So second part we will call the print a. No, it will show us the k and a on the screen. Now you can imagine we have written code once for k and once for a. Then again, if I have to print ka, then again what I have to do, I just need to call write these call two times more here, so it will print me kaka on the screen. So in this way, we can control the our we can reuse our existing code. For example, if I write on here print k, it will show me k here. And if I again write down print a and call it will call again the same function, and it will show me again a. So I do not have to repeat these lines again and again. So it is called the reusability of the code. I have written down the code once, एक दफा मैंने code लिखा, and then I am actually calling that code multiple times. So अब आप ये imagine कर सकते हैं, if you write down these statement for a to z, हर एक का एक एक फंक्शन बना ले, ए से लेकर ए बी सी डी एफ जी और बाकी सब अल्फाबेट के लिए, देन यू कैन प्रिंट एनी word from the dictionary using you have to write down 26 functions, and only function ko you can use repeatedly and can make any number of words from these functions. So it is the actually reusability, and we achieve reusability into the functions. Functions सब languages में होते हैं, C++ में, Java में, C Sharp में, Python में, Ruby में, everywhere there are functions. बस उसको define करने का या उसको बताने का तरीकाकार थोड़ा सा different होता है, but basic concept is the same everywhere. अच्छा जी, अब ये जो भी हमने function लिखा, we call we use a technical term, we call this function do not take input and do not return any output. ना तो ये कोई इनपुट लेता है, ना ही कोई आउटपुट लेता है। तो ये दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन विल कम इनटू योर माइंड
कि फंक्शन तो ठीक है, ये बात तो हम एग्री करते हैं कि इनपुट नहीं लेता क्योंकि फंक्शन इनपुट नहीं ले रहा, लेकिन फंक्शन कोई आउटपुट नहीं दे रहा, दैट सीम्स लिटिल बिट रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ हियर वी आर यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। तो जब हम ये कहते हैं ना फंक्शन आउटपुट नहीं देता, तो इसका ये मतलब होता है कि जो इसे कॉल कर रहा है, इसको ये वापस आके कुछ नहीं बताता। तो इट मीन्स कि फंक्शन, जब हम कहते हैं फंक्शन, इट डज़न्ट मीन कि फंक्शन प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर। इट मीन्स कि फंक्शन आउटपुट नहीं दे रहा है, तो वी से कि फंक्शन को जो कॉल कर रहा है, जो भी प्रोग्राम या जहाँ से भी फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसको फंक्शन आके वापस आके कुछ नहीं बताता कि अब यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट के किया, फंक्शन ने क्या किया, आगे जाके स्क्रीन के ऊपर इट विल प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, ये प्रिंट कर देगा, लेकिन जिसने कॉल किया, इसको आके इसने वापस नहीं बताया कि मैंने क्या काम किया। So in that case, we say कि function do not give the output, or more specifically, वो इस confusion को avoid के लिए we say कि function do not return anything. Uh, अच्छा बच्चों, अगर आपका दरमियान में कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड एंड उसामा विल लेट मी नो कि ना जो है आपका क्वेश्चन है, देन आई विल stop and entertain your question, because at the moment I can only see the PowerPoint slides. I cannot view the uh, uh, Google Meetup screen. So please raise your hand and Sama will let me know कि कोई question है तो I can address the question. लेकिन बाकी जो अगर डिटेल क्वेश्चन होंगे we can discuss after the end of these slides. अच्छा जी, उसके बाद अब हम ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं कि जो फंक्शन को हम कोई इंफॉर्मेशन पास करें, and function will process on that, and function then return back to the caller, जो इसे कॉल करे उसको ये वापस कोई चीज रिटर्न करे। तो यूजुअली हम ऐसे ही फंक्शन बनाते हैं। तो अभी ऐसा फंक्शन बनाने के लिए पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं कि वी वांट टू राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टू टेक टू नंबर्स, जिसको हम दो नंबर पास करें, जो भी से कॉल करे उसको ये दो नंबर पास करे व्हेन इट इज कॉल्ड, add those numbers and then return their sum back to the caller function। वो इनको ऐड करे और उसका सम जो है ना वो वापस उस फंक्शन को रिटर्न कर दे या उसको रिटर्न कर दे जिसने इसको कॉल किया। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट ए फंक्शन। हमें उसी तरह फंक्शन डेफ से डेफिनेशन करेंगे, नेम, वी गिव द नेम टू द फंक्शन, हम फंक्शन को एक नाम देंगे, देन वी विल here mention the two arguments, it is called the arguments or parameters। इनको हम parameters भी बोलते हैं, इनको हम arguments भी बोलते हैं। इसका ये मतलब है जब भी कोई फंक्शन या कोई भी दूसरा प्रोग्राम इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसको कहेगा नंबर सम करो, तो इसको ना दो चीजें भी इसको देनी पड़ेंगी, और पहली जो चीज देगा, पहली जो वैल्यू देगा वो फर्स्ट में आएगी और दूसरी वैल्यू जो देगा वो सेकंड में आएगी। हमारा फंक्शन क्या करेगा, इन दो वैल्यूज को जमा करेगा, इट विल सम दीज टू वैल्यूज एंड पुट इट इनटू द थर्ड वेरिएबल, लेट्स से वी कॉल इट द सम, एंड देन रिटर्न दैट सम बैक टू द कॉलर, जिसने कॉल किया होगा इसको ये वापस कर देगा। अच्छा जी, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, हम अपने बाकी दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इसको कॉल करते हैं। लेट्स से हम इधर लिखते हैं सम 2 8, 2 विल गोज टू द इनटू द फर्स्ट, ये फर्स्ट वेरिएबल में आ जाएगा, और 10 विल बी हियर इन द सेकंड वेरिएबल, तो ये 10 सेकंड वेरिएबल में आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा, फंक्शन विल ऐड दीज टू वैल्यूज, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 10 है, इट विल सम अप दीज टू वैल्यूज, इट विल गोज टू द थर्ड वेरिएबल व्हिच इज नेम्ड एज सम, एंड देन रिटर्न सम बैक, और इसको सम करने के बाद सम का वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करेगा। एक्चुअली वेरिएबल रिटर्न होने का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है दैट विल बी रिटर्न बैक। तो ये 12 यहाँ पे जो है ये वापस रिटर्न करेगा। तो ये जिसने इसे कॉल किया है, इस जगह पे आंसर में इट विल स्टोर गेट बैक 10, तो आंसर के अंदर जो है वो 10 आ जाएगा। अच्छा, अब इस आंसर को हम अगर प्रिंट करेंगे तो इट विल शो अस 12 ऑन द स्क्रीन। तो ये स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर हमें 12 शो कर देगा।
तो हुआ क्या कि हमने एक फ़ंक्शन सेपरेट बना लिया। हमने कहा कि फ़ंक्शन जो है वो क्या काम करेगा, 2 पैरामीटर लेगा। इसको जब भी कोई कॉल करेगा इट विल व्हाटएवर हू विल बी कॉलिंग इट इट विल बी पासिंग 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल इसको पास किए जाएँगे, देन इट विल ऐड दीज़ 2 वेरिएबल्स एंड देन रिटर्न द रिज़ल्ट बैक टू द कॉलर। और जो कॉलर है वो क्या कर रहा है, वो सम जो आ रहा है वो इसको अपने अंदर आंसर एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो इस तरह हम स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। अब इस फ़ंक्शन को हम बहुत जगह पे बार-बार यूज़ कर सकते हैं। अभी तो फ़ंक्शन बहुत छोटा है, लेकिन फ्यूचर में वी विल सी कि दे आर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर फ़ंक्शन। इफ वी नीड टू रीयूज़ द कोड, जस्ट वी नी हैव टू राइट ऑन a single uh, line to call the function. अच्छा जी। अम, एक क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा कॉमन सा जो है, आपको इसका आंसर मे बी यू कैन इमेजिन इट। वो ये कि हैव यू सीन एनी फंक्शन ऑफ पाइथन दैट टेक वन आर्गुमेंट एंड रिटर्न बैक ए वैल्यू? क्या आपने कभी कोई ऐसा फंक्शन देखा है जो एक आर्गुमेंट लेता है और कोई वैल्यू रिटर्न करता हो, अभी तक जितनी पाइथन हमने पढ़ी है? So I hope you can imagine it. The input is the function जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, जिसको एक्चुअली वी गिव एन आर्गुमेंट। हम उसको एक आर्गुमेंट पास करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ये आर्गुमेंट वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज हमें शो करता है। और ये फंक्शन जो है ना वो क्या रिटर्न करता है, जो वैल्यू यूजर ने एंटर की वो हमें स्ट्रिंग की शक्ल में रिटर्न कर देता है। तो आंसर के अंदर वो स्ट्रिंग आता है। तो ये फंक्शन किसने बनाया था? ये फंक्शन एक्चुअली पाइथन वालों ने हमें बनाकर दिया हुआ है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड द प्री डिफाइंड फंक्शंस। ये पाइथन के पहले से डिफाइंड जो है ना फंक्शंस हैं, वी कॉल इट दी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो जो अभी हमने सम का फंक्शन बनाया दैट इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड और कस्टम फंक्शन। इसी तरह इनपुट के अलावा कोई और फंक्शन आपने यूज किया हो? इनपुट के अलावा कोई और फंक्शन, अगर आप याद करें तो हमने एक फंक्शन यूज किया था टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो इनपुट भी एक फंक्शन है, इस तरह आईएनटी भी एक फंक्शन है। आईएनटी को हम क्या पास करते हैं, वी पास ए स्ट्रिंग एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर। तो वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। अगेन इट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन। ये पहले से डिफाइंड फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। No, we can say, if we say what is the function, no, we can define it more formally, and that is a function is a block of code or segment of code that perform a specific task. We give input to the function, it performs some calculations on it and return the output. कोई कैलकुलेशन करता है, कोई प्रोसेसिंग करता है और हमें रिटर्न आउटपुट करता है। एक्चुअली जो रियल फंक्शन होते हैं वो इनपुट लेते भी हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, हम फंक्शन को क्या कहते हैं जब वो इनपुट लेते हैं? इट मीन्स कि वो हम उनको पैरामीटर्स की शक्ल में कोई डाटा पास करते हैं, वो हमें रिटर्न कर देते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करके उन पैरामीटर्स के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करते हैं। इनपुट और आउटपुट का यूजुअली फंक्शंस की सेंस में इट डज़न्ट मीन कि ये एक्चुअल यूज़र से कंसोल से इनपुट कर रहे हैं या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। यूजुअली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी विल राइट डाउन a function in a way that it does not take input within the function and does not give the output within the function। वो फंक्शन के बाहर ही हम ऐसा काम करें। बट इसके ऊपर एक डिटेल से बात की जा सकती है। मे बी इन सम एडवांस कोर्स वी विल डिस्कस द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ राइटिंग ए टू राइट ए गुड फंक्शंस। अच्छा जी, फंक्शन आपने यही याद रखना है कि इसको हम कुछ पास करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, इस पे प्रोसेस करता है और ये हमें रिटर्न कर देता है, जो इसको कॉल कराता है कोई वैल्यू। तो जब हम फंक्शन के इनपुट से बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये पैरामीटर की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू दैट इट विल रिटर्न टू अस। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर यू राइट डाउन 2 फंक्शंस that add numbers and then multiply those numbers and show us on the screen। तो यूजर से इट विल आस्क 2 नंबर्स और एक इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने इनपुट और प्रिंट की स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर यूज नहीं करनी, दोनों फंक्शन के अंदर। यानी कि हम ये आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि आप एक ऐड का फंक्शन बनाएं, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाएं। ऐड का फंक्शन
2 पैरामीटर लेता हो इंटीजर्स टाइप के, या जो भी टाइप पाइथन में तो हम डिफाइन नहीं करेंगे, तो 2 पैरामीटर लेगा वो, and it will add those values and return back to us, and we will show it on the screen. And then we will make a product function. It will take 2 arguments, and then it will multiply it and return back to us. So you should do it maybe after the end of the lecture, but I will show the quickly show the code to you, so you can understand कि अगर multiple function लाने हो उसको इस तरह use करना तो हम कैसे कर सकते हैं. So इस तरह we will make 2 functions here. We will make 2 function. One is the add. It will taking 2 parameter और इसको वो sum करके return कर रहा है. Multiply का function है. यहाँ पे it is taking 2 arguments or 2 parameters, and then it is multiplying those 2 number and returning the value back to the caller. और यहाँ पे हम जो हमारा पाइथन का रेगुलर प्रोग्राम होगा उसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं. अब इनपुट हमने इसमें यूज नहीं की. और इसी तरह हम उसमें सेकंड नंबर इनपुट ले रहे हैं और हम प्रिंट कर रहे हैं सम इज. अब प्रिंट भी हमने इसमें यूज नहीं किया. हम कर सकते हैं, वी कैन यूज इट हेयर, बट जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो हमने लगाई थी कि आपने प्रिंट और इनपुट यहाँ पे नहीं करना. तो उसके बाद फिर आप यू कैन कॉल दी function, and you can pass the parameter to these number to as a parameter to the add function. तो ये जो add करके return करेगा वो screen के ऊपर यहाँ पे हमें show हो जाएगा, लिखा हुआ आएगा sum is whatever user have entered, the sum will be shown on the screen. Similarly for second, it will show the product is, and then it will show the product of the two numbers on the screen. So ये हम कॉलिंग कर रहे हैं. तो इसलिए हमने कहा था कि इनपुट आउटपुट आपने फंक्शन में लेनी, बिकॉज वी वांट के यू मेक ए फंक्शन इन ए वे दैट it will take the arguments, it will process on it, and it return the values back to the caller, and then caller should print those value on the console. So इस तरह हम फंक्शन को ऐसा बनाना सीख जाएं कि जो आर्ग्यूमेंट ले रहा हो उसके ऊपर प्रोसेस करो और हमें कुछ वापस रिटर्न बैक करो. So that was the function related, and there is second skill we will going to discuss, decision making. Meanwhile, I open the second skill. If you have any question, then you can ask. अच्छा बच्चों, we start the second part. If you have any question, then you can ask. You can also post in the chat window as well. So आप में से कोई बच्चा बता देगा तो I will answer this question. अच्छा जी, the skill 5 flirting Python is decision making. ये स्किल्स हमने बड़ा डिटेल से अपने सी प्लस प्लस का कोर्स है उसके अंदर हमने डिफाइन की हुई हैं. सो इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट विद दीज स्किल्स, और इसी तरह आप इन स्किल्स को कर लें तो यू विल अंडरस्टैंड दी एनी लैंग्वेज. तो अगर आपने कभी जावा पढ़नी हो, सी शार्प पढ़नी हो, तो इसी तरह स्किल वाइज आप जो है ना इस इंफॉर्मेशन को हासिल करें. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज. So we start with the decision making. Uh, जब भी हम लाइफ के अंदर वी हैव ऑप्शंस, हमने कोई चॉइस हो या ऑप्शन हो और हमने किसी कंडीशन की बेस पे कोई फैसला करना हो, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग. एंड वी डू इट इन डेली लाइफ. Like sometime we say कि if there will be a good weather, then we will go out for picnic. तो हम बाहर पिकनिक करेंगे अगर अच्छा मौसम होगा. तो actually what we are saying कि we will do some kind of action, we will make a decision, and then based on some condition. तो हम किसी condition की base के ऊपर कोई फैसला करेंगे. So whenever we take decisions or action, do some kind of action based on some condition, it is called the decision making. और अगर रियल लाइफ में कंडीशंस की बेस पे हम डिसीजन करते हैं, फैसले करते हैं, काम करते हैं, तो नेचुरली कंप्यूटिंग के अंदर भी हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है. लेट्स से वी हैव टू राइट ऑन ए प्रोग्राम फॉर ए स्टोर. वो ये कहता है कि मैं ना जितनी भी परचेजेस होंगी उसके ऊपर ना 10% डिस्काउंट दूंगा. तो वी वांट टू राइट ए फंक्शन
that take total purchase amount as input. वो टोटल परचेज अमाउंट उसको एज ए हम इनपुट का मतलब है पैरामीटर के तौर पर पास करेंगे और रिटर्न्स दी पेबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, और उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट करके वो हम जो है ना उसको पेबल अमाउंट जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इस तरह का फंक्शन लिखना चाहें तो अब हमने फंक्शन पढ़ लिए हैं, सो वी कैन इजीली राइट ऑन सच काइंड ऑफ फंक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट फंक्शन सिंपल सा होगा, वो दैट विल बी look like in this way. We will start the def means definition. We will give name to the function. We will tell the caller that this function required a one parameter, और वो पैरामीटर का नाम हमने अमाउंट रख लिया है। देन जो पेबल है, जितने उस यूजर को पे करने हैं, उस अमाउंट में से हम उसका 10% निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो 10% we will subtract it from the real amount and then return the payable back to the user. So ये जो है इट विल कैलकुलेट द डिस्काउंट, ये फंक्शन है। अब इसी प्रॉब्लम को वी विल कंटिन्यू एंड वी विल सी हाउ कैन वी ऐड कंडीशन विद इन दिस प्रॉब्लम। सो इसका जो है वो हम लेट्स से अब हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं। फर्स्ट इस फंक्शन की कॉल देख लेते हैं। वी कैन राइट ऑन अनदर कॉलर प्रोग्राम जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। वी विल राइट ऑन इनपुट एंटर द अमाउंट, यूजर से वो अमाउंट पूछेगा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर एंड स्टोर इट इनटू द अमाउंट, और फिर वी विल कॉल द डिस्काउंट फंक्शन। यहाँ पे हम ये वाली अमाउंट कॉल कर लेंगे, दैट विल द डिस्काउंट विल बी रिटर्न टू द पेबल। ये फंक्शन ये जो पेबल कैलकुलेट करेगा वो इसमें आ जाएगा वेरिएबल में, और इसके बाद हम स्क्रीन के ऊपर उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये इस फंक्शन को जो कॉल है वो ये है। तो अब हम यहाँ से अपनी प्रॉब्लम बिल्ड करते हैं फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो द सेकंड प्रॉब्लम इज विद द कंडीशंस। सो लेट्स से स्टोर हैज अनाउंस्ड टू गिव 10% डिस्काउंट। वो कहता है कि अब जो डिस्काउंट है ना 10% परचेज अमाउंट पे, वो सिर्फ हम मैं संडे को देना चाहता हूँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट ऑन ए फंक्शन जिसको हमें ये भी बताना पड़ेगा कि डे क्या है और टोटल परचेज़ अमाउंट क्या है। पहले तो हम सिर्फ अमाउंट बता रहे थे क्योंकि जितनी भी अमाउंट थी, वो सारी की सारी एक्चुअली वी आर गिविंग डिस्काउंट ऑन इट। लेकिन अब हमने जो डिस्काउंट देना है, वी द आवर डिस्काउंट इज़ एक्चुअली कंडीशन्ड, उसके ऊपर कंडीशन है। अगर संडे होगा, तो फिर हम डिस्काउंट देंगे। तो संडे हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या ये कहते हैं कि उस फंक्शन को हम संडे बता देंगे कि आज संडे है या मंडे है। तो फंक्शन की जो कॉल है, उसके अंदर अब हमें एक और आर्गुमेंट ऐड करना पड़ेगा कि संडे जो है वो डे भी इनपुट कर ले। तो वंस इट विल इनपुट द डे, देन वी विल ऐड कंडीशन ऑन इट कि अगर संडे हो तो फिर आप इसके ऊपर जो है ना वो 10% डिस्काउंट देना। तो इस चीज को अगर हम लिखें इस फंक्शन में, तो एक तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, वी नीड टू ऐड वन मोर पैरामीटर हियर इन आवर फंक्शन हियर। मे बी वी विल से कि अब वो डे भी इनपुट करेगा, और उसके बाद फिर हम इस डे को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये वाला एक्शन उस वक़्त परफ़ॉर्म करेंगे जब जो कंडीशन जो है ट्रू होगी, यानी कि मतलब कि जब संडे होगा, एट दैट मोमेंट वी वांट टू एक्जीक्यूट दिस एक्शन। सो वी विल राइट ऑन द कोड, वी विल मेक वन चेंज हियर। वी विल से कि अब ये फंक्शन को डे भी पास होगा। शुरू में पेबल एक वेरिएबल है जिसके अंदर 0 है, ठीक है? कि इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ कि इसमें ये गलती आ जाएगी, इसको हम अभी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अगर इफ डे इज़ इक्वल टू संडे, अगर डे संडे है, तो पे बिल इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस वही फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 10% डिस्काउंट देंगे, अगर डे संडे। तो ये दिस इज़ द वे हाउ वी विल ऐड द कंडीशन इन आवर कोड। अब होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है, जब ये कंडीशन ठीक होगी, यानी कि जो वैल्यू अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की, उसमें संडे होगा, तो ये कंपेयर करेगा। दिस इज़ कॉल्ड द कंपैरिज़न ऑपरेटर। ये वाला जो इक्वल का साइन है, इट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और जब हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कंपैरिज़न ऑपरेटर। कंपैरिज़न ऑपरेटर क्या काम करता है? इट एक्चुअली कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल with this information or this data
and if both variables are the this variable and this information is the same, this data is the same, then it will return a value which is called the ट्रू। इसे हम कहते हैं ये ट्रू वैल्यू बताता है। तो इस तरह की चीज को जो कंपैरिजन करे, कंपैरिजन जब भी हम करेंगे हम कहेंगे डे क्या संडे के बराबर है, तो ये बात सच हो सकती है या ये बात झूठ हो सकती है। अगर ये बात सच है तो वी से कि ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर ये बात झूठ है यानी कि डे के अंदर लेट्स से मंडे है, तो फिर जो है इधर हम जो है इसके अंदर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स से डे में अगर मंडे हो और वो हम कंपेयर करें संडे के साथ, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। इन दैट केस इट विल रिटर्न द फॉल्स। तो कंडीशन स्टेटमेंट को जब भी अगर ट्रू मिलता है, तो फिर वो उसके बाद वाला आप जो है वो कोड एग्जीक्यूट करती है। अगर यहाँ पे हमने इफ लगा दिया, तो इसका मतलब जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, व्हेन दिस स्टेटमेंट विल गेट ट्रू, सो एट दैट मोमेंट दिस लाइन विल बी एक्सिक्यूटेड। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, लेट्स से यूजर यहाँ पे वैल्यू जो है वो मंडे एंटर करता है, ये कंडीशन डेज के पास आएगा मंडे और संडे ये बराबर नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? पेबल होगा। मतलब कि जब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा पेबल, तो ये हमारे प्रोग्राम में एक एरर है, तो ये प्रिंट कर देगा जो है वो जीरो, यानी कि आपको कोई चीज पे नहीं करनी। तो ये वैसे तो भी मेरे से गलती से हो गया, लेकिन यहाँ से एक अच्छी बात है कि हम एक चीज़ समझ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड, देखिए प्रोग्राम चल जाएगा, इसमें और कोई मसला नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड द सिमेंटिक एरर। इसको हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। और यहाँ पे एक और जो है वो क्योंकि सी प्लस प्लस से कॉपी किया है, तो ये सेमीकोलन भी आ रहा है, इट विल नॉट बी हियर। लेकिन अगर सेमीकोलन हो भी तो पाइथन डजंट माइंड, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए वी कैन ऐड द सेमीकोलन। सो दिस टाइप ऑफ एरर इफ पाइथन माइंड इट, पाइथन गिव द एरर, देन इट इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर, और यहाँ पे जो है वो सिमेंटिक एरर है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो पेबल है वो उस वक़्त वही अमाउंट हो, जो-सी यूज़र ने एंटर किया उसके ऊपर कोई डिस्काउंट ना हो, तो यहाँ पे हम 0 को हटाकर इसके साथ इज़ इक्वल टू अमाउंट कर देंगे। तो शुरू में लेट्स से अगर यूज़र जो है वो 100 वैल्यू एंटर करता है यहाँ पे, और डे के अंदर यूज़र एंटर कर देता है मंडे, तो होगा क्या? ये 100 विल गोज़ here in this amount, and this Monday will goes here in day, यहाँ पे वो डे में आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट के अंदर 100 एंटर किया, वो दैट विल स्टोर्ड इन पेबल, या मेरी करेक्शन के बाद की बात है। ये जब हम स्लाइड अपलोड करेंगे वी विल डू दैट करेक्शन हियर। सो ये अमाउंट टेबल में आ जाएगी, और टेबल में 100 होगा। यहाँ पे डे के अंदर जो वैल्यू है दैट इज मंडे, और इधर जो है हमने संडे के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है, तो मंडे इज नॉट इक्वल टू एक्चुअली संडे। तो इन दैट केस क्या होगा? पेबल में कोई वैल्यू नहीं जाएगी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो रिटर्न जो है वो पेबल कर देगा, और पेबल की जो रीजनल वैल्यू दैट विल रिमेन दी 100। तो यहाँ पे वो 100 जो है वो वैल्यू ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं होगा, सॉरी, ये थोड़ी-थोड़ी रह गई हैं चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट करते हुए। तो ये इट विल रिटर्न दी 100 बैक हियर, और ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 100 कर देगा, तो ये अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। क्यों? क्योंकि अब मंडे को हमने कोई डिस्काउंट नहीं देना था। लेकिन लेट्स से अगर यूज़र मंडे की जगह पे संडे एंटर करता है और वो 100 ही पास करता है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। डे इज़ इक्वल टू संडे होगा, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, पेबल की अमाउंट अपडेट हो जाएगी, और जो भी अपडेटेड अमाउंट है वो रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो इन दिस वे द कंडीशन स्टेटमेंट्स वर्क्स के जब व्हेनेवर वी वांट टू एग्जीक्यूट सम code based on some condition, then we use the if statement। और fortunately जो है वो तकरीबन सभी लैंग्वेजेस में if statement ही है। बस बाकी लैंग्वेज में सी शार्प, जावा में ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। यहाँ पे जो है वो कॉलन यूज होता है। इफ के बाद जब कोई इंफॉर्मेशन आ रही हो, तो हम जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कॉलन लगाते हैं यहाँ पे। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सेकंड इज के जो इफ के बाद हम चाहते हैं कि चीजें एग्जीक्यूट हों, उनको हम टैब करके एंटर करते हैं। तो आप ये देख देख सकते हैं जो है वो यहाँ यहाँ पे इस जगह पे
ये वाले जो पेबल की लाइन आई, इसके बाद टैप करके आई है, बिल्कुल इसके नीचे नहीं आई। तो जो चीज़ हम पाइथन के अंदर असल में इंडेंटेशन से बताते हैं कि कोई ब्लॉक, कोई कोड किसके अंडर है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है, वो इस इफ स्टेटमेंट के अंडर है। सो इफ इट इज़ द अंडर और विदिन दिस इफ स्टेटमेंट, so whenever this condition true, this line will be executed. अगर ये इसके अंडर नहीं होगी, ये बिल्कुल इसके नीचे होगी, तो वो इफ के इन्फ्लुएंस में नहीं होगी। वो यानी कि इफ ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेएबल वाली लाइन हमेशा ही चल जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं ये सिर्फ़ उस वक़्त चले जब जो है वो ये इसके अंडर ये कंडीशन ट्रू हो, तो फिर हम इसे टैप करके जो है वो हम इसको लिखेंगे। So this is the way how we use the condition statement within the Python program. अच्छा जी, अब अगर हम इसको थोड़ा-सा देखें फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करें, तो हम क्या कहते हैं कि ये सेम प्रॉब्लम है एंड नो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू गिव द 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल परचेज अमाउंट ऑन संडे एंड 5% ऑन एवरी अदर डे। यानी कि अगर संडे ना हो तो 5% डिस्काउंट है और अगर संडे हो तो 10% है। सो अब इसको हम किस तरह करेंगे, तो इट मीन्स कि अब हमें ना 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। एक वो जब डे जो है वो संडे है उस वक़्त, और एक उस वक़्त एक्शन जब डे इज़ नॉट संडे। यानी कि अब हमें अपने प्रोग्राम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब संडे होगा तो वी हैव टू गिव 10% डिस्काउंट, और जब संडे नहीं है वी हैव टू गिव 5% डिस्काउंट। इट मीन्स वी हैव टू ऐड 2 इफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो है सिंगल कंपैरिज़न ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा। वो इसलिए कि एक बात याद रखिएगा, ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को जब वो कंडीशन स्टेटमेंट पे काम कर रहे होते हैं, कि इन दोनों वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है ना, हमें अलग-अलग एक्शन परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे। इसके अगेंस्ट अलग एक्शन परफ़ॉर्म करना है, यानी कि मतलब एक्शन से मतलब है कि इसके अगेंस्ट हमें 10% डिस्काउंट देना है और इसके अगेंस्ट हमें 5% डिस्काउंट देना है। तो ये तो हमें पता है कि हमने कंपैरिज़न कैसे करना है, हमने लिखा था कमांड डे इज़ इक्वल टू संडे। तो यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड द कंपैरिज़न ऑपरेटर। इट इज़ ये होता है कि 2 वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना। अब यहाँ पे नॉट संडे है, तो इसके लिए ये हम कौन-सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? इसके लिए एक्चुअली वी कैन यूज़ डे एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज़ इक्वल टू, इट मीन्स नॉट इक्वल, इसका मतलब ये बराबर नहीं है संडे के। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम ना ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रही हो किसी वेरिएबल्स के ऊपर या किसी डाटा के ऊपर। तो इसको हम, ये ऑपरेटर की ख़ास टाइप है व्हिच इज़ कॉल्ड द कंपैरिज़न ऑपरेटर्स। इसमें अभी हमने देखा डबल इक्वल है, वो ये कि 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। नॉट इक्वल टू, अगर 2 चीज़ें बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे 2 वेरिएबल्स, तो नॉट इक्वल टू उस वक़्त क्या रिटर्न करेगा हमें, जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसके अलावा भी कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हैं। दिस इज़ द हियर इट इज़ द लिस्ट ऑफ द कंपैरिज़न ऑपरेटर। ये असल में सी प्लस प्लस में और सी शार्प में जो है वो सेम ही कंपैरिज़न ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो इनको हम टेक्निकली वी कॉल द कंपैरिज़न ऑपरेटर्स। जिस तरह हमने अभी पहले पढ़ा था प्लस, स्टेरिक, डिवीजन, इसी तरह ये सारे ऑपरेटर आर कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि कोई-कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनको वी कॉल द कंपैरिज़न ऑपरेटर, ये कंपेयर करने के लिए होते हैं। तो ये लेस देन भी होता है, लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जब भी हम कंपैरिज़न ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दे ऑलवेज़ रिटर्न वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रू या फॉल्स। तो ये हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। वी कॉल दीज़ वैल्यूज़ बूलियन वैल्यूज़। इनको हम बूलियन वैल्यूज़ भी कहते हैं मोर टेक्निकली, कि जब वो कोई बात ट्रू है या फॉल्स है, तो वी कॉल इट बूलियन वैल्यूज़। और वी these operators are called arithmetic operator. Why? Because they always return the some integer, float, or mathematical type of values. So comparison operator always return the boolean or true or false values. For example, let's say if we write on if ab is equal to c, तो ये क्या रिटर्न करेगा कंपैरिजन ऑपरेटर? ये रिटर्न करेगा false, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है।
तो इफ की स्टेटमेंट के बाद कुछ लिखा होगा तो वो कभी भी चलेगा नहीं। ये स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी? ये ट्रू रिटर्न करेगी क्योंकि दोनों बराबर है। अब इधर लिख रहे हैं ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये बात सच है, यानी कि ये ए बी ए सी के बराबर नहीं है। तो ये इस वक़्त ये वाली जो स्टेटमेंट है इट विल रिटर्न ट्रू। और इफ 5 नॉट इक्वल टू 3, यस 5 नॉट इक्वल टू 3 है। अभी अब ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी? ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रिटर्न करेगी। अब 2 इज़ लेस देन 4, यस वी नो 2 इज़ लेस देन 4 और ये बात सच है, तो इसका मतलब है कि ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू। 4 ग्रेटर देन 4 नहीं, 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। 5 लेस देन 90, यस 5 लेस देन 90, लेस देन और इक्वल टू 90, यस लेस देन भी है और इक्वल, ये दोनों में से कोई एक बात सच है, यस तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ट्रू। सिमिलरली हियर 66 ग्रेटर देन 21, यस इट इज ट्रू, इट विल रिटर्न अगेन ट्रू। तो ये कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर हम डिफरेंट कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और दे विल ऑलवेज रिटर्न द बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, तो अब जो हम वो कम बैक टू आवर प्रॉब्लम कि अब हम लिखना चाह रहे थे, नो वी हैव टू ऐड टू कंडीशन इफ द डे इज संडे एंड इफ द डे इज नॉट संडे। तो हम इस प्रोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं कि अब यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा डे और अमाउंट को, वी विल से कि डे इज इक्वल टू संडे है, और इफ डे इज इक्वल टू संडे देन वी विल यूज द दिस डिस्काउंट, एंड इफ डे इज इक्वल नॉट इक्वल टू संडे यानी कि कोई और दिन हो, डे संडे के बराबर ना हो, तो देन वी विल यूज दिस डिस्काउंट। अब इधर 10% है, इधर 5% है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं बेस्ड ऑन दी डिफरेंट कंडीशन। अब ये डिसीजन मेकिंग हो रही है कि अगर संडे होगा तो फिर हम 10% डिस्काउंट देंगे, अगर संडे नहीं होगा तो फिर हम 5% डिस्काउंट देंगे, और डिसीजन मेकिंग कंडीशन पे हो रही है कि डे संडे है या नहीं है, और उसके बाद वो पेबल जो है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। और जो कॉलर होगा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, वो जस्ट पहले भी डे और अमाउंट हमने पहले प्रॉब्लम में देखा था, वो पास कर रहा था, तो वो वही डे और अमाउंट जो है वो पास करेगा। अच्छा, इसमें एक और बात कि अभी तो हमने ये कोड ऐसे लिखा है, अगर डे संडे है और डे नॉट इक्वल संडे है, ऐसी कंडीशन का ना कॉन्ट्राडिक्टिंग कंडीशन भी कहा जाता है कि जो देयर आर टू कंडीशंस व्हिच आर एक्चुअली एवरी टाइम ओनली वन ऑफ देम विल बी ट्रू, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा होगा अगर जब भी फंक्शन को कोई डे पास होगा, वो एक वक्त पे या तो संडे हो सकता है या नहीं होगा। तो ये कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि डे कोई मंडे है तो फिर तो संडे वाली कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं होगी, तो ये हो जाएगी। अगर डे संडे है तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशंस आर कॉल्ड द कॉन्ट्राडिक्टिंग, और जब भी कॉन्ट्राडिक्टिंग कंडीशन आए वी कैन रिप्लेस द एक्स्ट्रा इफ विद द एल्स। हम ना यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं अगर ये बात सच हो तो फिर ये एक्शन कर देना, और अगर ये बात सच नहीं है, एल्स इसके अलावा कोई बात है, वो कुछ और है, कुछ भी और हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला एक्शन कर दो। तो इस वक़्त हम इफ एल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन में इस तरह हम इसको बता सकते हैं कि इफ डे इज़ इक्वल टू संडे और एल्स लिखेंगे, तो ये अब ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम बोथ विल गिव अस द सेम आंसर, तो दोनों एक ही हैं। ये अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप उसको चूज़ करते हैं या इसको चूज़ करते हैं। हाँ, जो पहला प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? जब भी हम कंडीशन देंगे तो अगर संडे होगा, यहाँ पे बल्कि ये स्लाइड पे आ जाते हैं। अगर संडे है तो इस केस में अगर संडे, लेट्स से जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की दैट वाज़ द संडे, और अगर वो संडे है तो ये वाला लाइन एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। अब टेक्निकली तो उसको बाकी इस वाली को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि बस यही है, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इस कंडीशन को भी चेक करेगा। वो वो कंप्यूटर इतना अक्लमंद नहीं है कि वो कहे अच्छा ये संडे था तो ये संडे नहीं है तो मैं इसको नहीं चेक करता, मैंने पक्की बात है ये नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर बेचारा इसको भी चेक करेगा, एंड इट विल ऐड एडिशनल लोड ऑन द कंप्यूटिंग। मे बी इस केस में तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मे बी बहुत ज़्यादा इफ हो, तो इट इज़ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इस केस में
हम जब ये कंडीशन चलेगी, तो कंप्यूटर को पता है इन दोनों में से एल्स का मतलब है अब कंप्यूटर को समझ लग जाएगी कि इन दोनों में से एक वक़्त पे एक ही कंडीशन ट्रू होगी। अब अगर वो इसे चेक कर लेगा ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, वो इसकी तरफ कभी भी नहीं जाएगा एल्स वाले पार्ट में। और अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स होती है फिर वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो अगर वो ट्रू होती है तो ये एक्स्ट्रा इसको चेकिंग यहाँ पे कंडीशंस की नहीं करनी पड़ेगी। ये जो है इसलिए कहा जाता है कि इफ एल्स स्ट्रक्चर इज बेटर देन टू इफ स्ट्रक्चर्स। सो वो इसलिए कि इट विल टेक द लो प्रोसेसिंग। और वैसे भी ये थोड़ा-सा समझना भी आसान है कि अगर संडे है तो ये काम कर दो और अगर अदरवाइज़ एल्स नहीं है तो फिर ये काम कर देना। तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो एक डिसीजन कि एक कंडीशन ट्रू हो रही हो तो ये काम करना हो और अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो रही हो तो दूसरा काम करना हो, यूज़ द एल्स स्टेटमेंट। और मेन फंक्शन जो है दैट विल रिमेन सेम। अच्छा, बस लास्ट ये एक चीज़ डिस्कस करते हैं देन वी विल वाइंड इट अप। और उसमें ये कि समटाइम ना कंडीशंस आर नॉट कंट्राडिक्टिंग। मसलन कंडीशन एक दूसरे से कंट्राडिक्टिंग नहीं होती। और हमें उनके अंदर ना डिफरेंट एक्शंस करने पड़ते हैं फॉर डिफरेंट कंडीशंस। तो उस केस में हम क्या करते हैं? मसलन लेट्स से नो वी हैव टू ऐड 3 कंडीशन। इफ डे इज़ संडे, इफ डे इज़ मंडे एंड इफ डे इज़ ट्यूसडे। अब पहले तो ठीक था, संडे था और संडे ना होगा तो मंडे होगा। संडे नहीं होगा तो कोई दूसरे दिन में हमने कहा था कि कोई भी डिस्काउंट है। लेकिन अब हमने ना मंडे को एक डिफरेंट डिस्काउंट देना है, ट्यूसडे को डिफरेंट डिस्काउंट देना है। तो इस केस में हमें ना सेपरेट 3 पैरेलल इफ लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर डे संडे है तो फिर पेएबल 10% है, अगर डे मंडे है तो फिर पेएबल 8% है, इफ डे इज़ इक्वल टू ट्यूसडे तो वो ये हमें 3 अलग-अलग से इफ लगाने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें भी एक हम एडिशनल इस प्रोग्राम को बेहतर कर सकते हैं। अब यू कैन इमेजिन कि अगर डे संडे नहीं होगा, लेट्स से वेडनेसडे है, तो क्या होगा? ये सारा प्रोग्राम पहले ईसिफ को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा और उसके बाद फिर एंड पे पेबल को रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब वेडनेसडे के केस में तो ये कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो अगर वेडनेसडे है, तो फिर तो चलें ठीक है ये तीनों इफ चेक होने चाहिए। लेकिन इफ इट इज़ द ट्यूसडे और इफ इट इज़ द संडे तो क्या होगा? संडे के केस के अंदर ये वाली लाइन तो अ, चेक करेगा, उसके बाद पेबल को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद फिर वो इसको भी चेक करेगा, फिर वो इसको भी चेक करेगा। क्योंकि प्रोग्राम इफ जब भी लिखा होगा, तो वो उस इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा। कंप्यूटर इसको इससे रिलेट नहीं कर सकता, उसको इसकी समझ नहीं है कि ये वाले इफ अगर ये ट्रू हो गया, तो ये दोनों इफ ट्रू नहीं होंगे। ये हम एज़ ए ह्यूमन ही उसको बता सकते हैं कि ये जो 2 इफ हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं फ्रॉम द दैट पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम वी विल यूज़ द अम, एल्स इफ। और एल्स इफ के लिए लिखना पड़ता है यहाँ पे ELIF। इस पे पाइथन में यूज़ होता है ELIF। हम बाकी लैंग्वेज में हम लिखते हैं एल्स इफ, यहाँ पे हम लिखेंगे ELIF, ठीक है जी। So finally, we here it is the assessment. You should try these questions on your end. और इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो कीजिएगा। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन वी विल एड्रेस इट ऑन लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी। आप वॉइस से भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट हियर टेक्स्ट मैसेज हियर। जो स्लाइड्स हैं और लेक्चर हैं वी विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन द समवेयर और आपको एक्सेस दे देंगे। अच्छा बच्चों ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन वी विल एंड द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट टाइम जो है माय प्लान इज टू डिस्कस द। अच्छा बच्चे एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा बच्चों ये पाइथन के अंदर ना एक्चुअली सी प्लस प्लस में एंड अदर लैंग्वेज लाइक सी शार्प जावा etc अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता, वी राइट ऑन इंटीजर x इज इक्वल टू 10।
आई होप कि आप सबको मेरी जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है। अ जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, इसमें व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस सो और सी शार्प, हम उसमें बताते हैं इसकी डेटा टाइप क्या है। अब डेटा टाइप बताने का मतलब ये है कि अ जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम बता रहे हैं लैंग्वेज को कि ना इसके अंदर हम इस डाटा स्टोर करते हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों बताने की ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर इंटरनली मेमोरी को स्ट्रक्चर करता है। मसलन अगर इंटीजर करना है ना स्टोर, तो इंटीजर का एक है हार्ड स्पेसिफिक साइज़ होता है। तो इंटीजर को उतनी ही मेमोरी एलोकेट की जाती है जितना मैक्सिमम इंटीजर स्टोर किया जा सकता है उसमें। इस तरह अगर फ्लोट स्टोर करना है, तो मैंने अगर कोई ये वाली वैल्यू फ्लोट एक्स इज़ इक्वल टू 5.5 करनी है, तो इसके लिए एक सेपरेट साइज़ होगा जो इंटीजर से बड़ा होगा। अच्छा, पाइथन ऑन अदर हैंड ना क्योंकि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इस वजह से पाइथन को डाटा टाइप अगर हम ना भी बताएँ, तो वो ऑटोमैटिकली स्टोर कर ले लाइक इधर इधर लिखेंगे हम एक्स 5.5, तो अब पाइथन ऑटोमैटिकली समझ जाएगी कि एक्स की जब इसमें वैल्यू जाएगी एक्स में, तो पाइथन देखेगी ये तो है ही फ्लोट है, तो मुझे क्यों कोई बताए, पाइथन कहती है कि मुझे क्यों कोई बताए कि जब मुझे खुद पता चल जाता है। तो इसकी टाइप जो है वो बैक एंड पे वो ऑटोमैटिकली फ्लोट सेट कर देगा। तो डाटा टाइप्स नेसेसरी होती हैं किसी भी लैंग्वेज को ऑपरेट करने के लिए। बस फ़र्क ये है कि पाइथन जो है वो कहती है कि आप ना बताएँ मुझे, मैं खुद ही अंदाज़ा लगा लूँगी कि डाटा टाइप क्या होगी। बाकी लैंग्वेजेज़ रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप हमें बताएँ, ठीक है? उसकी एक बड़ी टेक्निकल रीज़न है और रीज़न असल में बैक ट्रैक करती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर। तो इट्स टू अर्ली फॉर दिस कोर्स कि हम ये चीज़ अभी डिस्कस करें। अच्छा, इसमें एक जो कन्फ्यूजन आती है ना जो अक्सर बच्चों को, वही आती है कि हम जब इनपुट करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कोई एंटर वैल्यू करो, तो आपने तो हमें बताते हैं कि जो वैल्यू जो है वो पाइथन खुद आइडेंटिफाई कर लेती है। तो फिर इस एक्स को जो हमने इनपुट किया है, इसको हमें क्या ज़रूरत होती है कि इंटीजर एक्स में करें? तो इसका मतलब पाइथन ठीक तरह आइडेंटिफाई नहीं करती। अच्छा, ये एक छोटा-सा बिल्कुल ठीक है ये ऑब्जर्वेशन, ये ऐसे ही है पाइथन क्यों नहीं ठीक आइडेंटिफाई करती, पाइथन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन इश्यू ये है वो ये यहाँ पे जब हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 5.5 तो पाइथन बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये इंटीजर है और इट इज़ द फ्लोट। लेकिन जब हम इनपुट करते हैं तो उस वक़्त पाइथन आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। असल में ये मसला पाइथन की आइडेंटिफिकेशन का नहीं है, मसला ये इनपुट फंक्शन का है। इनपुट फंक्शन क्योंकि कमांड लाइन से कुछ भी जेनेरिक चीज़ सेंड की जा सकती है। मतलब कोई अब यूज़र है, यूज़र को तो हम रोक नहीं सकते कि वो 5 एंटर कर दे, 5.5 एंटर कर दे, टेक्स्ट एंटर कर दे। तो यूज़र कुछ भी एंटर करेगा, दैट विल बी वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अब वो कौन-सी ऐसी टाइप है जिसके अंदर हर तरह का डाटा आ सकता है? वो टाइप स्ट्रिंग की है। तो इसलिए जो भी यूज़र एंटर करता है, इनपुट ऐसा फंक्शन बनाने के लिए कि वो यूज़र की हर चीज़ को दिल खोल के एक्सेप्ट कर ले। तो वो जो एक्सेप्टेंस है, उसके लिए उसको स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। अच्छा, अब इसलिए यहाँ पे जो इनपुट का है वो स्ट्रिंग फंक्शन उन्होंने खुद से बनाया हुआ है डेलिबरेटली और उसके बाद जो है फिर हम उसको अगर हमें लगता है कि ये डाटा होना ही इंटीजर टाइप है क्योंकि हमने इसके ऊपर मैथमेटिक फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल पाइथन में टाइपिंग का ये है। अगर आपका इसके अलावा क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा जी क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि डाटा टाइप नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं हाँ, इसके लिए ना एडवांस टूल्स यूज़ होते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड लिंटरन टूल्स जो एक्चुअली ना हमें पाइथन के अंदर गाइड कर सकते हैं। मसलन उसमें हम जब विजुअल स्टूडियो में लिख रहे हैं ना, तो अब ये बड़ा मसला है। वो ये है कि मैं मुझे पता है एक्स हमेशा 5.5 है या फ्लोट है, तो हम जो है ना वो चाहते हैं कि अगर मैं इसको ना इस तरह यूज़ करूँ, एक्स इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, तो सिस्टम मुझे एरर दे दे। तो हम ना एक हेल्पर टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर जो सिंटैक्स को ना
एनोटेट कर देते हैं, उसे कहते हैं एनोटेशन। लेकिन पाइथन एज़ ए पाइथन जो है ना वो जो है वो डाटा टाइप्स को नहीं डिफाइन करने देती। हम ये कर सकते हैं अभी शायद मेबी किसी नेक्स्ट कोर्स में कि हम इधर इस तरह इंटीजर करके इस तरह तो नहीं, कोई ख़ास तरीके से जो है वो पाइथन के अंदर वेरिएबल को डाटा टाइप दे दें, लेकिन वो ट्रू डाटा टाइप्स नहीं होती, वो सिर्फ़ उसको हेल्प करने के लिए प्रोग्रामर को, ताकि रिस्ट्रिक्ट, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग स्टाइल। ये प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम कर सकते हैं पाइथन को ऐसे कि ना वो हमें, अगर हम डाटा टाइप गलत बता दें या गलत डाटा टाइप इंटीजर और डाटा स्ट्रिंग पास कर दें, तो वो एरर हमें दे दें। लेकिन ये पाइथन की इंटरनल फंक्शनैलिटी नहीं है, ये आप समझ लें कि उसके ऊपर एक रैपर है जो विजुअल स्टूडियो या कोई इस तरह का प्रोग्राम साथ-साथ सब टेक्स्ट चेक करता जाता है और हमें बताता जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, हाँ, स्पेसिफिकली हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो पाइथन के लिए नहीं, आपने वो अलग से रैपर उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ज़ुहैब का क्वेश्चन है, वो ये कि सर प्लीज़ थिंक अगेन ऑन क्लास टाइमिंग। बच्चों, आई कैन टेक क्लास फ्रॉम 6 टू 9 एनी टाइम। बस ये है कि इफ एवरीवन इज़ ओके देन वी कैन मेबी शिफ्ट इट टुवर्ड द 8 और 7। तो ये आप सब अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा ग्रुप पे, उसामा को सेंड कर दें उनको, तो वी विल सी कि अगर ज़्यादा लोग जो हैं वो हैं तो हम कर सकते। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, वुड वी बी रेडी टू जंप इनटू Django फ्रेमवर्क आफ्टर कंप्लीशन? अच्छा वैसे एक तो बेसिक पाइथन जब हम कर लेंगे, तो असल में Django इज़ नॉट ओनली दी पाइथन फ्रेमवर्क ना, उस पे लिखा तो सारा पाइथन में ही है, लेकिन ना उसके लिए कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। दोज़ आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो once you understand object-oriented programming, maybe the course we were offering in the यूईटी नेक्स्ट सेमेस्टर, तो अगर आप हमारे यूईटी के बच्चे हैं तो ऊप के बाद यू कैन इजीली अंडरस्टैंड डिजेंगो। अगर आप कुछ बच्चे अगर बाहर से ज्वाइन करते हैं, या तो वो हम इस दफ़ा कोशिश करेंगे जो हम ऊप का कोर्स क्लास में पढ़ाएँ उसको ऑनलाइन भी वीकली भी उसको जो है हम एग्ज़ीक्यूट करते रहें साथ-साथ। तो अभी के लिए डिजेंगो इज़ नॉट फॉर जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ द फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो अगर आप वो पढ़ चुके हैं, देन यू विल बी वेरी मच रेडी टू अंडरस्टैंड डिजेंगो। डिजेंगो के साथ प्लस एडिशनल एक चीज़ वो आप समझ लें अगर, तो फिर आपको पूरा स लाइफ साइकिल समझ आ जाएगा, व्हिच इज़ द रेस्ट एपीआईज़। रेस्ट एपीआईज़ क्या हैं? तो मेबी हम जैसे पाइथन खत्म होगी तो वी विल एक्चुअली अरेंज ए लेक्चर ऑफ पाइथन के अंदर फ्लास्क के साथ रेस्ट एपीआई कैसे बन जाएँ, और फिर डिजेंगो आप इज़िली समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी डू इट वंस दिस कोर्स इज़ कंप्लीटेड। तो मे बी उसामा आप लिस्ट डाउन कर लें, इट इज़ अ गुड आइडिया कि बच्चे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल काम भी शुरू कर सकते हैं, डिजेंगो पढ़ लें, तो वी विल मेबी गिव ए 1 और 2 आवर लेक्चर ऑन डिजेंगो एज़ वेल। तो हम नेक्स्ट इसके बाद डिजेंगो पे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसके लिए रेस्ट एपीआईज़ पहले करें। अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले फ्लास्क के अंदर डिजेंगो को यूज़ किए बगैर सबसे पहले रेस्ट एपीआईज़ जो है ना वो पढ़ना। ठीक है बच्चे? और कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। गुड, ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड में। टाइमिंग से रिलेटेड इफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वांट टू चेंज द टाइम देन वी कैन डू इट, और वो फिर आप उसामा को बता दें। अस्सलाम वालेकुम।